Hello everyone. Hello my little kids. I'm your Let's teacher Himani Divan Tindra. Today we will learn so many things from the book Tiny Tots Mathematics Skillbook Primer of Acknowledge series from Amit Publication. Today we will learn addition. आप सबको पता है एडिशन क्या होता है? जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं और एक नंबर बनाते हैं. लाइक आई हैव नाउ वन फिंगर. मैं आपको वन फिंगर दिखा रही हूँ, है ना. अब मैं आपको टू फिंगर्स दिखा रही हूँ. तो वन एंड वन टू, वन एंड वन टू. वन पैरेट इज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री. आप सब पिक्चर में देख रहे हो, एक ब्रांच में एक पैरेट बैठा है. वन मोर पैरेट कम्स एंड सिट्स ऑन द ट्री. एक पैरेट फ्लाई करता हुआ आया और फर्स्ट वाले पैरेट के साथ में बैठ गया. तो कितने हो गए? नाउ देयर आर टू पैरेट्स. आप पिक्चर में भी देख रहे हो कितने पैरेट्स है? टू पैरेट्स है. देखो वन एंड टू. नाउ देयर आर टू पैरेट्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री. शिवम had 4 balloons. शिवम के पास कितने बैलून्स है? 4 बैलून्स है. अनुष्का gives him 1 more balloon. अनुष्का ने इसे एक और बैलून दिया. Now शिवम has 5 balloons. पहले शिवम के पास कितने थे? 4. अनुष्का ने कितने दिए? 1. तो 4 and 1. 4 and 1 कितने हो गए? 5. 4 plus 1 equals to 5. 4 including 1 makes 5. और 4 plus 1 is equal to 5. The symbol of addition is plus. हम addition का symbol कैसे लगाते हैं? Plus. And it is read as plus. Count and add. अब हमें क्या करना है? We have to count the objects and add the objects. काउंट कीजिए कितनी आइसक्रीम्स है यहाँ पे? 1. यहाँ कितनी आइसक्रीम्स है? 1. तो 1 and 1. 1 आइसक्रीम and 2 आइसक्रीम कितनी हो गई? 1, 2. So we have to write the number 2. Now there are 2 jugs. 1, 2. यहाँ पे कितने हैं? 2. और यहाँ पे कितने जग्स हैं? 1. So count the objects. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So we have to write the 3 number in the box. Now these are the ink pots. 1, 2, 3. यहाँ पे कितने हैं? 3. Now we have to count the ink pots. 1, 2, 3, 4. So we have to write the number 4 in the box. Now count the keys. 1, 2. कितनी keys है? 2. तो हम 2 कहाँ पे लिखेंगे? इस बॉक्स में लिखेंगे. अब हम ये वाली keys को काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4. कितनी हो गई? 4. So अब हमने 2 और 4 को कंबाइंड कर दिया है ना. यहाँ पे कितनी कीज थी? 2 कीज थी. यहाँ पे कितनी हो गई? 4 कीज हो गई. तो हमने 4 कीज और 2 कीज को कंबाइंड कर दिया. तो अब हम इसे क्या करेंगे? काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We have to write 6. 2 plus 4 equals to 6. Count the objects, write the number in the boxes and add them. Now count the objects. 1, 2. There are 2 books. 1, 2. There are 2 books. तो कितनी हो गई? काउंट करो. 1, 2, 3, 4. 4 books. Now these are the cherries. So we have to count the cherries. 1, 2, 3,
4. यहाँ कितनी है 4 प्लस 2 more cherries 1 2. तो आप कैसे काउंट करोगे 1 2 3 4. Try to count with the fingers 1 2 3 4. ये 4 हो गई. अब इसमें 2 और ऐड करनी है 1 2. हमने यहाँ पे 2 cherries ली. Now count the fingers 1 2 3 4 5 6. So we have to write the number 6. Now rest of the addition you all have to do in the homework. Now these are the logs. Firstly we have to count these logs 1 2 3 4 5. 5 logs 1 2 3 4. 4 logs. Now we have to count 1 2 3 4 5. कैसे काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Number 9. Now these are the 9s in the picture 1 2 3 4 1 2 3. अब हमें इन्हें एक साथ ऑल टुगेदर इन्हें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7. 4 plus 3 equals to 7. Now rest of the addition you all have to do in the homework. Add and take the correct answer. अब हमें क्या करना है ऐड करना है और टिक करना है करेक्ट आंसर को. अब कितने रेड्स हैं यहाँ पे काउंट करेंगे हम 1 2. कितने हैं 2 1 2 3. Now count 2 and 3. Add the numbers 2 and 3. 1 2 3 4 5. Now tick on the 5th number. Now these are the bears 1 and 1. तो 1 plus 1 कितना हुआ 2. 2 is the right answer. Now rest of the addition you all have to do in your homework. Now these are the stars in the picture. 1 2 3. यहाँ कितने हैं 3 stars हैं 1 2 3. यहाँ पे भी 3 stars हैं. तो अब आपको इन सब stars को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6. 3 plus 3 equals to 6. Now these are the helicopters. यहाँ पे कितने helicopters हैं 1. और यहाँ कितने helicopters हैं 1 2 3. Now count all together 1 2 3 4. How many are there in the picture 1 2 3 4. 1 plus 3 equals to 4. Now rest of the addition you all have to do in the homework. Add the numbers and circle the correct number. Now we have to firstly add the numbers and circle on the correct number. 4 plus 4. तो आप 4 plus 4 कैसे करोगे. अब बहुत सारे बच्चों को तो फिंगर्स पे आता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को फिंगर्स पे नहीं आता. तो वी मेक स्ट्रोक्स. स्ट्रोक्स कैसे बनाएंगे लाइक दिस. यहाँ कितना है नंबर 4. तो आपको 4 स्ट्रोक्स बनाने हैं 1 2 3 4 लाइक दिस राइट. अब यहाँ पे कौन सा नंबर है 4. अगेन वी विल मेक 4 स्ट्रोक्स 1 2 3 4. अब इन सारे स्ट्रोक्स को हम एक साथ काउंट करेंगे एक सीक्वेंस काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 plus 4 equals to 8. आप सबको समझ में आया. Now this is the number 3. Make 3 strokes 1 2 3. Right. Now
make 4 strokes. 1, 2, 3, 4. अब हमें क्या करना है, 3 strokes और 4 strokes को काउंट करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो हमारा आंसर क्या आया, 7. So we have to circle on the number 7. Rest of the exercise you all have to do in your homework. 5 plus 1. So firstly we have to make 5 strokes for number 5. 5 के लिए हम कितनी strokes बनाएंगे, 5. 1, 2, 3, 4, 5. और ये क्या है, 1, नंबर 1. तो हम नंबर 1 के लिए कितनी strokes बनाएंगे, only 1. Now count all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 plus 1 equals to 6. So we have to circle on the 6. 1 plus 9. 1 plus 9 कितने होते हैं, तो पहले हमें 1 stroke बनाना है for number 1 and make 9 strokes for number 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 plus 1 equals to 10. Now rest of the exercise you all have to do in the homework. Addition by finger counting. अब हम क्या करेंगे, अपनी finger counting से addition सीखेंगे. Example 1. Add 2 and 4. अब हमें 2 और 4 को ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम ऐसे 2 करेंगे, राइट, और 4 कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे अपनी फिंगर्स को. फिर इन सब फिंगर्स को इकट्ठे काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. लेकिन हमें इसमें कैसे करना है, add 2 and 4. Which is less, 2 और 4. अब 2 और 4 में से कौन सा नंबर छोटा है, नंबर 2. So close all the fingers of your one hand and open 2 fingers. अब आपको क्या करना है, वन हैंड की जो आपने 4 फिंगर्स खोली थी उसको बंद करना है और जो 2 फिंगर्स खोली थी उसको हमें खोल के रखना है. नाउ अब क्या करना है, हमें 4 को कहाँ पे रखना है, अपने माइंड में रखना है. तो हमें काउंटिंग 2 से आगे करनी है. ये 2 फिंगर्स है आपकी, 1, 2. तो अब हमने 2 के बाद कहाँ तक काउंट करना है, इसमें कितना प्लस करना है, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2 plus 4 equals to 6. Example number 2. Add 5 and 3. Which is less, 5 or 3? आप बताओ मुझे 5 और 3 में से कौन सा नंबर लेस है. Yes, you all are right. Number 3. It is 3. So close all the fingers of your one hand and open only 3 fingers. आपको सिर्फ 3 फिंगर्स ओपन करनी है और जो नंबर 5 था उसकी 5 फिंगर्स को बंद कर लेना है. नाउ अब क्या करना है, हमें 3 फिंगर्स है और 5 कहाँ रखेंगे, हम अपने माइंड में रखेंगे. तो 3 के बाद में हमें 5 तक काउंट करना है. 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो 3 और 5 कितना हो गया हमारा, 8. 5 plus 3 equals to 8. Add the given numbers by finger counting. अब हम फिंगर काउंटिंग की हेल्प से नंबर एडिशन सीखेंगे. 4 plus 2. अब यहाँ पे 2 फिंगर्स दिखाई है, राइट. तो 4 को आप कहाँ पे रखोगे, अपने माइंड में रखोगे और ये कितना नंबर है, 2. तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, 6. तो आंसर क्या हुआ हमारा, 6. नाउ 4 and 3. तो 4, अब 4 के बाद में हमें कौन सा नंबर दिया है, 3. तो 4 के बाद में हमें 3 टाइम्स नंबर को बोलना है. 4, 5, 6,
7. तो आंसर क्या आया हमारा 7. नाउ नेक्स्ट नंबर इज 6 प्लस 2. तो 6 को कहाँ पे रखेंगे हम अपने माइंड में रखेंगे और हमें नंबर 2 तक हमें काउंट करना है. 6 कहाँ पे है हमारा माइंड में. तो 6 के बाद में आप 2 नंबर्स और ऐड करो 7, 8. तो हमारा आंसर क्या आया 8. Rest of the exercise you all have to do in your homework. 3 plus 3. Our next number is 3 plus 3. तो ये क्या है नंबर 3. ठीक है, नंबर 3 को कहाँ रखना है हमने अपने माइंड में. Yes, you all are right. तो नंबर 3 के बाद में हमें कितना और काउंट करना है 3 तक. तो 3 के बाद में 4, 5, 6. So 3 plus 3 equals to 6. Now next number is 2 plus 1. तो 2 हमारा कहाँ पे है माइंड में. अब 2 के बाद हमें कितना ऐड करना है नंबर 1. तो 2 के बाद में क्या आया 3. तो आंसर is 3. Now rest of the addition you all have to do in your homework. Count and add the given numbers. अब हम ऐसे ही काउंट करेंगे 6 प्लस 3. तो 6 हमने कहाँ पे रखा अपने माइंड में और हमें कहाँ तक काउंट करना है 3 और काउंट करने हैं. मतलब 6 के आगे हमें 3 और नंबर्स काउंट करने हैं. तो जल्दी से काउंट करो 6 के बाद में 7, 8, 9. आंसर क्या आया हमारा 9. Now next number is 5 plus 4 equals 2. 5 हम कहाँ रखेंगे अपने माइंड में और हमें कहाँ तक काउंट करना है 5 के आगे 4 नंबर्स तक काउंट करना है. तो 5 के आगे काउंट करो 6, 7, 8, 9. आंसर क्या आया हमारा 9. नाउ 7 plus 1. 7 को कहाँ रखा हमने अपने माइंड में रखा और हमें 7 के बाद कितने नंबर्स तक और ऐड करना है बस 1 नंबर ऐड करना है हमें. तो 7 के बाद क्या आएगा 1 नंबर और ऐड करेंगे तो 8. Now rest of the addition you all have to do in your homework. 8 plus 2. 8 को आप कहाँ रखेंगे अपने माइंड में और 8 के बाद 2 नंबर्स और ऐड करने हैं. तो 8 को तो हमने कहाँ रखा अपने माइंड में. 2 नंबर्स और ऐड करेंगे तो 9, 10. So we have to write 1, 0, 10 in the circle. Now 5 plus 1. 5 we have to keep in our mind. 5 को कहाँ रखेंगे अपने माइंड में and plus 1. 5 के बाद क्या आएगा 6. Now rest of the work you all have to do in the homework. Addition on the line number. अब हम addition कैसे सीखेंगे लाइन नंबर सीखेंगे. तो ये क्या है हमारी नंबर लाइन. कहाँ से स्टार्ट होती है हमारी नंबर लाइन फ्रॉम 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. राइट. अब यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 5 plus 3. तो हम क्या करेंगे 0 से 5 तक जंप कर जाएंगे. राइट. इसके बाद में 3 नंबर हमें इसमें ऐड करना है. 5 में हमें 3 नंबर ऐड करना है. तो 5 के बाद में आप 3 कैसे करेंगे छोटा छोटा सा ऑफ लेंगे. लाइक 5 के बाद 6, 7, 8. 5 के बाद हमें कितना ऐड करना था 3. तो हमने 3 को ऐड करा 1, 2, 3. तो 5 plus 3 equals to कौन से नंबर पे हमारा स्टॉप हुआ 8. Now 6 plus 2. तो हमें 0 से कौन से नंबर पे जंप करना है 6 नंबर पे जंप करना है. और 6 में कितना नंबर ऐड करना है नंबर 2. हमें कितना ऐड करना है 2.
तो 6 से हमें 2 को जंप करना है। 6 से हमने पहले 7 पे जंप करा, फिर 8 पे जंप करा, तो हमारा आंसर क्या आया? 8। 6 + 2 = 8। 4 + 3। अब वापस से हमें कैसे करना है? 0 से नंबर 4 पे जंप करना है। ये हम कर गए नंबर 4 पे जंप। अब हमें 4 में कितना प्लस करना है? नंबर 3 प्लस करना है। तो हम कैसे नंबर 3 करेंगे प्लस? पहले 4 से 5 पे जंप करेंगे, 6 और 7। 4 + 3 = 7, क्योंकि हमने लास्ट जंप कहां तक लिया था? 7 तक लिया था, तो हमारा आंसर क्या हुआ? 7। Now let's start from the addition by strokes. Today we learn how we add from the strokes method. Draw 4 lines for 4 number. Draw 2 lines for 2. Count all the lines and write the answer. आज हम कैसे करेंगे बच्चों? आज हम स्ट्रोक से काउंट करना सीखेंगे। लाइक यहाँ पे नंबर दिया है नंबर 4, देन नंबर 2, एंड दिस इज द साइन ऑफ प्लस विच वी यूज इन द एडिशन। तो 4 की स्ट्रोक्स हम कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4. You have to make 4 standing lines. Now this is the number 2. Now you have to make 2 more standing lines. अब आपको क्या करना है? इन लाइंस को आपको इन स्ट्रोक्स को काउंट करना है। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6. The answer is 6. 4 + 2 = 6. Add the following numbers by making strokes. अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। This is the number 5. So we have to make 5 strokes. 1, 2, 3, 4, 5. आप सबको समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है हमें? नंबर 4. 1, 2, 3, 4. अब हमें क्या करना है? जो हमने 5 स्ट्रोक्स इधर बनाए थे, 4 स्ट्रोक्स 4 नंबर के आगे बनाए थे, अब हमें इन सबको एक साथ काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The answer is 9. आप सबको समझ में आ रहा है? हम और प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे है नंबर 1, तो हम कितने स्ट्रोक्स बनाएंगे? आप सब बताओ। हमने यहाँ पे नंबर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स बनाए थे, तो यहाँ पे कितने स्ट्रोक्स बनाएंगे? 1, क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या है हमारा? 1. अब यहाँ पे कितने नंबर है हमारा? 3, तो हम कितने स्ट्रोक्स बनाएंगे? Yes, you all are right. 3 स्ट्रोक्स बनाएंगे। 1, 2, 3. अब हमें क्या करना है? आप सब बताओ जल्दी से। हमने यहाँ पे क्या किया था? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमें इन सब स्ट्रोक्स को इकट्ठे काउंट करना है एक साथ। 1, 2, 3, 4. 1 + 3 = 4. 1, 2, 3. हमने 3 स्ट्रोक्स क्यों बनाए? क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर क्या दिया है? 3. अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? 4 स्ट्रोक्स बनाएंगे। 1, 2, 3, 4. अब क्या करना है हमें? आप सब बताएंगे अब मुझे। Yes, you all are right. अब हमें क्या करना है? इन सबको एक साथ काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हमारा आंसर क्या आया? 7. Yes, you all are right. 1, 2, 3. हमने 3 स्ट्रोक्स बनाए क्योंकि नंबर क्या है? नंबर 3. 1, 2, 3, 4, 5. अब हमें क्या करना है? इनको एक साथ काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आंसर क्या हुआ हमारा? 8. Yes, you all are right. अब यहाँ पे बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी है आपको। अब हमें इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, तभी तो हमें आएगा। हमें सिर्फ 1 या 2 सम सॉल्व करने से नहीं आएगा, हमें बच्चों और प्रैक्टिस करनी है। जब तक हम प्रैक्टिस पूरी नहीं रखेंगे अपनी, जब तक हमें एडिशन नहीं आएगा।
अब यहाँ पे क्या है नंबर 5, तो हमें कितने स्ट्रोक्स बनाने हैं? 5 स्ट्रोक्स बनाने हैं। लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 और यहाँ कितना नंबर है? नंबर 1। तो हमें क्या करना है? अब इसे एक साथ काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 6 is the answer. Now 5 1 2 3 4 5 again number 5 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है? इन सबको एक साथ काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Answer is 1 0 10। अब आप सब बाकी के सम्स घर से सॉल्व करके आएंगे, तभी तो मैम को भी पता चलेगा कि आप सबको समझ में आया है कि नहीं। तो बाकी के सम्स क्या है आपका होमवर्क। Add the following numbers by making strokes. Again we have to do this. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 plus 9 कितना हुआ? अब हमें ऐसे तो नहीं पता चलेगा, तो हमें क्या करना है? इन स्ट्रोक्स को हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। The answer is 1 8 18। Now the number is 6 1 2 3 4 5 6। हमने 6 स्ट्रोक्स बनाए। Now number 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 6 था नंबर, तो हमने 6 स्ट्रोक्स बनाए थे। यहाँ पे 7 है नंबर, तो हमने यहाँ पे कितने स्ट्रोक्स बनाए हैं? 7। अब हम 7 और 6 को प्लस करेंगे स्ट्रोक से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। The answer is 1 3 13। Now rest of the sums you all have to do in your homework. 7 plus 5. Again we have to make 7 strokes for number 7 and 5 strokes for number 5. 1 2 3 4 5 6 7 and 5 strokes for number 5. 1 2 3 4 5. Now we have to count all the strokes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. The number is 11 12. 12 is the answer. Now again next question 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने 8 स्ट्रोक्स क्यों बनाए थे? क्योंकि यहाँ पे नंबर क्या था हमारा? 8 और यहाँ पे क्या नंबर है? नंबर 6। 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है? इन सबको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। The answer is 14। आप सबको समझ में आ रहा है? अब बाकी की एक्सरसाइज आप कहाँ पे करेंगे? अपने घर पे करेंगे और मुझे बताएंगे कि कितने बच्चों को समझ में आया है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। Add the following numbers horizontally. अब हमें क्या करना है? नंबर्स को ऐसे ऐड करना है, लाइंस में ऐड करना है हॉरिजॉन्टली। तो हम कैसे ऐड करेंगे? हम स्ट्रोक्स की हेल्प से ही ऐड करेंगे। ये नंबर कौन सा है? नंबर 7 प्लस 8 इक्वल्स टू, अब हमें आंसर बताना है। तो हम क्या करेंगे? नंबर 7 के लिए कितने स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे? 7 1 2 3 4 5 6 7 राइट। नाउ 8 स्ट्रोक्स फॉर नंबर 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है? 7 स्ट्रोक्स और 8 स्ट्रोक्स को काउंट करना है।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. The answer is 15. 1, 5, 15. Now the next question is 8 plus 3 equals to. Now we have to make 8 strokes for number 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And 3 strokes for number 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. The answer is 11. 1, 1, 11. Now rest of the sums you all have to do in your homework. 9 plus 9. Again we have to make strokes and add the numbers with the help of strokes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब आपको कट करना है इन स्ट्रोक्स को. कट करेंगे तभी आपकी काउंटिंग ठीक बोल पाएंगे आप. अगर कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही काउंट कर लेंगे तो कई बार क्या होता है बच्चों, स्ट्रोक्स हमारे छूट जाते हैं जिससे हमारा नंबर करेक्ट नहीं आता. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. The answer is 18. 1, 8, 18. Now 7 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Now we have to count all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Answer is 11. आप सबको 7 के बाद में ही काउंटिंग को सीक्वेंस में ही फॉलो करना है. ऐसे नहीं करेंगे आपकी आपने किधर 7 काउंट करा फिर दोबारा से 4 काउंट करना. कभी भी ऐसे नहीं करेंगे. अगर ये 7 स्ट्रोक्स बनाया तो 7 के बाद में 8 स्ट्रोक आप 8 काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे. लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. आप काउंटिंग को ही सीक्वेंस में ही बोलेंगे. Now rest of the sums you all have to do in your homework. Now addition by 0. Look and understand. Nothing is in the basket. यहाँ पे एक basket भी है. यहाँ पे एक बास्केट भी है. क्या आपको बास्केट में कुछ दिखाई दे रहा है? No. Nothing is in the basket. Now 3 watermelons are kept in the basket. अब यहाँ पे कितने watermelons हैं? 3. 1, 2, 3. Right? Same 3 watermelons are in the basket. अब फिर से क्या है? 3 watermelons हैं basket में. 1, 2, 3. तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे तो हम बास्केट में कुछ नहीं था हमारी बास्केट में, तो हम इसको क्या काउंट करेंगे? 0. क्योंकि बास्केट में तो कुछ भी नहीं है तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे? 0. 0 वाटरमेलन्स इन द बास्केट. और यहाँ पे कितने काउंट करे थे हमने वाटरमेलन्स? 3 वाटरमेलन्स काउंट करे थे. 1, 2, 3. 0 plus 3 equals to 3. क्योंकि हम 0 से प्लस कर रहे हैं तो हमारा आंसर सेम आएगा. 0 plus 3 equals to 3. We find that 0 plus 3 equals to 3. When a number is added to 0, कोई भी नंबर हमारा अगर 0 से ऐड हो रहा है, the number remains the same. हमारा नंबर सेम ही रहेगा. चाहे 0 प्लस हम 2 करेंगे तो हमारा आंसर 2 रहेगा. 0 प्लस 10 कर देंगे तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा? 10 रहेगा. 0 की हम किसी नंबर से भी प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर सेम नंबर ही रहेगा. इन द सेम वे 0 plus 4 equals to 4.
0 plus 8 equals to 8. Now, again another example. Raj has 4 balloons. राज के पास कितने बैलून्स हैं? 4 बैलून्स हैं. रिया has no balloon. रिया के पास क्या आपको बैलून दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे हैं. In other words, Riya has 0 balloons. It means they both have 4 balloons altogether. इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के पास एक साथ मिलाकर कितने बैलून्स हुए? 4 बैलून्स हुए. We find that 4 plus 0 equals to 4. When 0 is added to any number, हमारा 0 अगर किसी भी नंबर के साथ ऐड होगा, the number remains the same. नंबर कैसा आएगा? सेम आएगा. In the same way, 5 plus 0 equals to 5. 7 plus 0 equals to 7. Add the following numbers horizontally. अब हमें क्या करना है? इन नंबर्स को ऐड करना है. अभी मैंने आपको समझाया था, हमारा कोई भी नंबर 0 से प्लस होगा तो हमारा आंसर सेम नंबर ही होगा. 0 plus 5 equals to, अब आप सब बताएंगे आपने अभी तक क्या सीखा? 0 plus 5 equals to, आंसर क्या आएगा? Yes, you all are right. Number 5. 0 plus 9 equals to 9. 0 plus 7 equals to 7. 3 plus 0 equals to 3. 0 चाहे पहले आए या बाद में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, लेकिन 0 के साथ में कोई भी नंबर ऐड होगा तो नंबर क्या होगा? हमारा आंसर होगा. 3 plus 0 equals to 3. 8 plus 0, अब ये सब आप बताएंगे मुझे. 8 plus 0 equals to, तो क्या आएगा आंसर? Yes, you all are right. 8. 2 plus 0 equals to 2. 9 plus 0 equals to 9. 0 plus 6 equals to 6. Add the following numbers vertically. अब हमें नंबर्स को कैसे ऐड करना है? वर्टिकली ऐड करना है. हमने अभी सीखा था कि हम 0 से ऐड करेंगे तो हमारा नंबर रिमेन रहेगा. 5 plus 0 equals to 5. 1 plus 0 equals to 1. 0 plus 6 equals to 6. 0 plus 4 equals to 4. Now rest of the questions you all have to do in your homework. Thank you everyone. Stay excited for plan of another video.